Our next topic right now is nucleic acids. So we will start with the next topic, and that's called nucleic acids. So when I say about nucleic acids, it basically means we are talking about character, we are talking about traits, hereditary, right? So let us start. See, what are nucleic acids? These are basically the biomolecules that are found in nuclei of all the living organisms, of course in the form of nucleoproteins. Nucleoproteins का मतलब होता है nucleus plus protein, in the form of what? Nucleic proteins या nucleoproteins, उसकी फॉर्म में आपको मिलेगा nucleic acids. Need not to tell you, these nucleic acids are nothing but they are actually responsible for the transmission of character or hereditary from one place to another, from one generation to the another generation, right? And of course it all is also responsible for the protein synthesis. समझ में आ रहा है? अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, यहां पर दो चीजें आ रही है, एक है न्यूक्लियोटाइड और दूसरा है न्यूक्लियोसाइड. लेट अस स्टार्ट. सबसे पहला मैं लेकर चल रहा हूं ये न्यूक्लियोसाइड. व्हेन आई से न्यूक्लियोसाइड, मुझे खुद यहां से नाम से पता चल रहा है एन. एन मतलब होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस. और यहां मैंने एस याद किया शुगर के लिए. So I have nitrogenous base plus sugar. That means nucleoside is nothing but it is a combination of nitrogenous base and sugar. The second term is nucleotide. When I say nucleotide, tide का नाम से मुझे तीन याद रहते हैं, T3. तो दो चीजें तो यही हैं. पहला क्या, जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें दो चीजें जो आ रही थी वो कौन कौन सी थी? नाइट्रोजनस बेस और शुगर. तो न्यूक्लियोटाइड में दो चीजें तो सेम ही है. पहला ऑफ कोर्स नाइट्रोजनस बेस, ऑफ कोर्स सेकंड इज नथिंग बट इट इज शुगर. बट विद दैट वी हैव phosphate bond. Phosphate bond, that is of course called pi. Here a phosphate bond. So nitrogenous base, sugar plus phosphate, pi, is nothing but it is called nucleotide. Sometimes most of the books they are writing nucleotide as nucleoside plus of course pi, which is called phosphate bond. That is also 100% correct, as you can see, जिसमें दो चीजें आ रही थी. Now let's go to one by one कि नाइट्रोजनस बेस कौन कौन सी होती है, ठीक है, और उसके बाद शुगर कौन कौन सी होती है. फॉस्फेट बॉन्ड तो एक ही होता है. सो लेट्स फर्स्ट गो टू, सबसे पहले हम चलेंगे नाइट्रोजनस बेस के ऊपर, राइट. सबसे पहला नाइट्रोजनस बेस, nitrogenous base. When I am talking about nitrogenous base, I have two words for it. One is purine, of course another is called pyrimidine. मतलब दो तरह की bases होती हैं. One is called purine base and another is of course called as pyrimidine base. That is B part, pyrimidine, pyrimidine bases. I repeat, one is purine, another is pyrimidine bases. So if we have purine bases and if we have pyrimidine bases, so I was saying कि one is purine base, another is pyrimidine base. ये जो purine base है, राइट, इसमें अगर देखा जाए दो बेसिस आती है. एक आती है बेटा एडेनोसाइन और ग्वानाइन, राइट. तो मैंने एक शॉर्टकट बच्चों को दिया है, ऐसे याद करो,
A और ऑफ कोर्स P गैप ग्वानाइन एडेनाइन प्यूराइन बेसिस में आ रहा है। और इसको याद करने का तरीका है कट, CUT कट। ये तो हो गया गैप, GAP गैप, गैप से याद हो जाएगा ग्वानाइन एडेनाइन इज इन द प्यूराइन। और पायरिमिडाइन थोड़ा बड़ा नाम है ना, तो मैंने ऐसे याद रख लिया उसमें कट, where C stands for cytosine, U for uracil, T for thiamine. I repeat, ये देखिए बेटा, प्यूराइन के अंदर याद करने का तरीका है गैप, GAP गैप, यानी ग्वानाइन और एडेनाइन प्यूराइन में है। तो पायरिमिडाइन बेसिस में क्या है? कट, CUT कट, साइटोसाइन, थायमाइन एंड यूरासिल। अब इसी तरीके से अगर हम चलें शुगर के पास, शुगर दो टाइप की होती है बेटा। ऑफ कोर्स एक शुगर का नाम है राइबोस, एक शुगर का नाम है राइबोस, और दूसरी शुगर का नाम है 2-डीऑक्सीराइबोस, 2-डीऑक्सीराइबोस। जो राइबोस शुगर होती है, आई रिपीट, पहला राइबोस शुगर, दूसरी 2-डीऑक्सीराइबोस। जो राइबोस शुगर है, ठीक है, वो कभी भी आपको आरएनए में मिलेगी, और जो 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर है वो डीएनए में मिलेगी। सो you can easily see there are two kind of sugar present in nucleic acid, one ribose, second 2-deoxyribose sugar, phosphate तो मैंने बता दिया फॉस्फोरिक एसिड से बना। अब हम चल रहे हैं बेटा डीएनए के स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आई रिपीट, वी आर गोइंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। When I say structure of DNA, there is a model which was put forward by two persons. One was Watson and another was Crick. So that's why sometimes it is also called Watson and Crick model. A very important question which right now I am going to take up is, remember beta, DNA is nothing but it is a polynucleotide. I repeat, it is a polynucleotide. If you ask me, sir, what is the meaning of this word? I have already told you. Polynucleotide का मतलब है जिसमें शुगर भी होगा, फॉस्फेट भी होगा, और नाइट्रोजनस बेस भी होगी, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है वो आती है क्या? दो स्ट्रैंड्स होते हैं। इन्होंने बोला था DNA has a double helical structure. DNA has a double helical structure. अगर DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है तो वो कुछ ध्यान से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा सा होता है। ये है DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। One exactly is going from 5 prime to 3 prime, and another is going from 3 prime to 5 prime. This is 3 prime to 5 prime. ये नंबरिंग होती है, मगर इसे याद रखना है कि 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। यानी अगर आप मुझसे पूछोगे सर ये क्या है, ये जो आपने, आई सेड दीज आर स्ट्रैंड्स। डीएनए के पास डबल स्ट्रैंड्स होते हैं। ये रहा पहला स्ट्रैंड जो मैंने बताया, बायो वाले बच्चों ने तो पढ़ा भी होगा, दे हैव और इट हैज डबल स्ट्रैंड। ये रहा पहला स्ट्रैंड, और बेटा ये रहा इसका दूसरा स्ट्रैंड। That's why I call it as what? Double strand molecule. अब इस डबल स्ट्रैंड में से अगर हम देखें तो यहां पर एक रूल फॉलो होता है बेटा, जिसे हम बोलते हैं बेस पेयर रूल। बेस पेयर रूल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल है ना, वो क्या होता है, मैं वो बताने जा रहा हूं। ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल को याद करने का तरीका है टैग सी। टैग सी यानी थायमीन बेस कभी भी एडेनाइन के बराबर होती है और ग्वानाइन बेस कभी भी साइटोसाइन के बराबर होती है। मैंने बोला याद करने का तरीका टैग, TAG टैग सी, यानी T A के बराबर है, C G के बराबर है, या G C के बराबर है, जैसे भी बोलिए। What I want to tell you here is
कि अगर मेरे पास यहां पर इस स्ट्रैंड पे टी है तो यहां ए होगा, यहां अगर ए है तो यहां टी होगा, यहां जी है तो यहां सी होगा, और अगर यहां सी है तो यहां जी होगा, यहां फिर टी है तो यहां ए होगा, या फिर टी है तो ए होगा, इस तरह से जी है तो सी होगा. दिस इज हाउ डबल स्ट्रैंड एंड द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल इज बीइंग फॉलोड. तो ये रहा, Watson and Crick from X-ray diffraction method proposed that DNA has a double helical structure with a strand that are running opposite to one another from 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime. The backbone of the मतलब जो backbone है वो polynucleotide से बनी हुई है. ठीक है, what I mean to tell you is ये जो backbone है, ये front वाला तो बेटा नाइट्रोजनस बेस है, मगर backbone में क्या क्या है? फॉस्फेट एंड शुगर. क्या है? फॉस्फेट एंड शुगर. That's why I call it as a polynucleotide. Next, sugar and phosphate into the interior of the base pairs are by linked with the complementary base pair जो मैंने आपको बताया. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है जो 1 मार्कर क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में बहुत बार, वो ये है the monomers of DNA are stabilized by phosphodiester linkage. I repeat, the monomer of DNA are stabilized by phosphodiester linkage. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डीएनए में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से स्टेबलाइज होते हैं. ऑल्दो अगर आप मुझे बोलोगे सर ये बेस के अंदर कौन सा बॉन्ड है, सो ऑफ कोर्स ये हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड. बट जो मैंने आपको बताया बेस स्टेबलाइज होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से. बट इफ यू आस्क मी द मोनोमर ऑफ डीएनए इट इज ऑलवेज स्टेबलाइज्ड बाय phosphodiester linkage. By what? Phosphodiester linkage. Last and final for today is what are the 3 different type of RNAs? बेटा हमारे पास 3 different type of RNA को याद करने का तरीका ये है, मिस्टर राहुल टंडन याद कर लो. मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA. याद होगा जी, राइट? The best way, as I said, remember by my name.